Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello, guys. My name is Piyush, and this is a new podcast channel. So it will be a very simple concept, जिस पे मैं अपने दोस्तों को invite करूँगा and other people that I know. And इस पे हम बहुत ही basic चीज़ों पे बात करेंगे. I'm a software developer by profession, but during this Corona times घर पे बैठ के I thought of let's try to do something fun. The first person that I like to invite today is a very dear friend of mine and my colleague. He is also a software developer in the same company as me. So let's first welcome Pramod. Hi Pramod. Hello, Piyush. Hi. And the next person that I'm going to call is Tanya. She works as a product manager in our company, and she is also a very dear friend of mine and Pramod. Hi Tanya. Hi. Hi Tanya. Hi Pramod. Welcome to the podcast. So yeah. So how are you guys doing? Corona mein everything all right? Everything all right as of now. Luckily, we have been well during this pandemic. What about you? Yeah, just same old stuff, being stuck at work. But after getting stuck at work, I thought that let's try to do something fun. So I'm thinking that let's give this podcast a try and देखते हैं कैसा जाता है. So I was thinking today's ka topic, let's keep it as Friends. Friends, the TV show. And it's, I think, one of the most popular shows. So yeah, let's talk about Friends. But before we talk about Friends, what are few of your favorite TV shows, guys? Let's start with Tanya. What are some of your favorite shows? I think the first that comes on top of my mind is definitely Friends. Apart from that, I do enjoy watching Brooklyn Nine-Nine, although I'm not very, very psyched about the later seasons, but the initial seasons of Brooklyn Nine-Nine was amazing. And so these are more of the on the comedy side, but then I also like watching shows like MasterChef and the other reality shows, especially during this pandemic. Yeah. Pramod, तुम्हारे what are some of your favorite shows that you like? मतलब मेरे को भी कॉमेडी शोज पसंद आता है, बट मैं सबसे पहले तो ये अपना ब्रेकिंग बैड वो मतलब वो बेस्ट लगता है. और फ्रेंड्स देखा, उसके बाद फिर मैं जैसे तान्या ने बोला ब्रुकलिन नाइन, वो भी अभी देख रहा हूँ, तो भी काफी अच्छा लगता है मतलब. बट फ्रेंड्स तो मतलब ऑलवेज फेवरेट. Friends तो evergreen है. Yeah, I mean, मेरे भी फेवरेट शोज में देखा जाए तो बहुत ही वेरिड शोज है. लाइक ऑल्दो लास्ट सीजन बहुत ही टट्टी था, बट स्टिल गेम ऑफ थ्रोन्स लास्ट Game of सीजन से Thrones, पहले yeah. तक वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज. और मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का लास्ट एपिसोड अभी तक देखा नहीं है. Oh, I want to comment. I have also been liking these Marvel shows lately. Like, I love Falcon and Winter Soldier. WandaVision was also nice, but I like Falcon and Winter Soldier a lot as compared to WandaVision. Yeah. And other shows में जैसे there's a show called Band of Brothers, and I'm a very enthusiastic person about the World War, तो इसलिए मुझे वो शो भी बहुत ज्यादा पसंद है. बढ़िया. कॉमेडी में देखा जाए तो फ्रेंड्स, एंड इट्स काइंड ऑफ शो जो कि कभी भी देख सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. और 1994 में रिलीज होने के बाद भी आज तक लोग देख रहे हैं एंड पसंद कर रहे हैं. So it's quite justified that it is one of the best shows that have ever been released. So yeah, before we talk about Friends, how did you guys come across Friends? किसी ने बताया होगा कब देखा पहली बार तुम लोगों ने Friends? प्रमोद, तुमने कब देखा पहली बार? तो मैं तो बहुत ही कम सीरीज देखा. तो मैं पहले हाउ आई मेट योर देखता था. तो अच्छा. मेरे को कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि भाई तेरे को इसमें इतना मजा आ रहा है तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर ले. फिर मैं टालता रहा कि यार मेरे को मतलब एक बार जैसे मैं घुस जाता हूँ तो मतलब वो हो जाता, तो इसलिए मैं वहां तक टालता रहा. फिर मैं जैसे ही ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा फ्लैटमेट था वडूड. तो वो मतलब वो हर दिन मतलब हर टाइम खाना खाते टाइम मतलब एक कोई ना कोई एपिसोड लगाएगा और जोर जोर से हंसेगा, मतलब मेरे मतलब रूम तक आ रहा था. तो उस टाइम मतलब मैं ऐसे एक दो एपिसोड वैसा देख लिया था.
फिर उसके बाद फिर जब ये लॉकडाउन लगा शायद तक उसी टाइम, जैसे पीयूष और तान्या ने बोला था मेरे को कि तुम भी स्टार्ट करो, तो फिर उस टाइम में स्टार्ट किया। फिर मतलब मेरे को तो मतलब बहुत ही फेवरेट बन गया उसके बाद। हाँ, मतलब मेरे साथ भी सेम है। मैं सेम थिंग, मैं पहले हाउ आई मेट योर मदर देखा था, लेकिन उसके बाद लाइक कॉलेज में फिर लोग बोलते थे फ्रेंड्स देखो, एंड मैं क्विजेस में भी पार्ट लेता था, उसमें फ्रेंड्स के भी बहुत क्वेश्चंस आते, तो मैंने सोचा कि फ्रेंड्स भी देख के देखते हैं, एंड देन जब देखा आई वाज टोटली ब्लोन अवे बाय इट। और अभी भी मतलब अनपॉपुलर ओपिनियन कि मेरे को अभी भी हाउ आई मेट योर मदर ज्यादा अच्छा इन द सेंस एक सिटिंग में देखने के लिए लगता है, सीक्वेंस में इमोशन वगैरह ज्यादा है। बट ऑब्वियसली हाउ आई मेट योर मदर मैंने शायद 2 ही बार देखा है, बट फ्रेंड्स में 10 बार देख चुका हूँ, तो आई थिंक फ्रेंड्स ज्यादा फन है। तानिया, तुमने कब देखा? I also have the similar story. So, like while growing up, is through school and college, I never had the habit of sitting through a series. Like मैंने कभी भी कॉलेज स्कूल टाइम तक मैंने ऐसा कोई भी सीरीज नहीं है जो मैंने एंड शुरू से लेके एंड तक हर एपिसोड अच्छे से देखा हो। लाइक जैसे टीवी पे जैसे कॉमेडी सेंट्रल पे आई रिमेम्बर फ्रेंड्स आता था, तो आई यूज्ड टू वॉच एपिसोड्स कि जिस दिन टाइम मिला और एपिसोड आ रहे तो उस दिन मैंने एपिसोड देख लिया एक, बट ऐसा नहीं कि आई यूज्ड टू वॉच इट इन कंटिन्यूएशन। सो आई थिंक इन 2019 वाज द फर्स्ट टाइम जबकि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक एट अ स्ट्रेच वो पूरा एक साथ देखा सारे एपिसोड्स, टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइंस ऑफ इवेंट्स एंड ईच एंड एवरी एपिसोड। And 2019 say, I mean, this is 2021 going on, and I think like my 10 Friends reruns have happened in 2 years only itself. So 3-4 तो like, लॉकडाउन में ही हो गए होंगे। आराम से because it's just a series like you exactly like just प्रमोद ने बोला ना कि खाना खाते हुए, like I think a lot of people do that कि खाना खाते हुए आप एक एपिसोड चला लो, जो जितने टाइम में हाफ एन आवर का एपिसोड खत्म होता है उतने टाइम में आपका खाना भी खत्म हो रहा है, आपका टाइम पास भी हो गया, you're laughing, you're not getting bored, ऐसा भी नहीं कि रिपीटेटिव लग रहा है। I don't know, somehow that is the beauty about it कि तुम्हें कभी रिपीटेटिव नहीं लगता है वो चीज देखने में। और ईच टाइम आप देखते हो आपको एक अलग पॉइंट पे हंसी आती है, मतलब आप यस, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स सबको बहुत पसंद है, लाइक जैसे तानिया ने 2019 में पहली बार देखा है, मैंने 2014 में पहली बार देखा है, तुमने 2020 में देखा है। बट मतलब ठीक है, हमारा गैप तो बहुत कम है, बट वी सी दैट इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम कि 90s के बंदे को भी दिखाओगे उसको भी पसंद है, और आजकल के लोग को भी दिखाओगे। जैसे आजकल के मिलेनियल्स है, लाइक मतलब इट वुड साउंड रूड टू से कि हम लोग बूढ़े हो गए, बट जो भी 16-17 साल के लोग हैं आजकल के, उनको भी लाइक फ्रेंड्स तो सबको ही पसंद आता है, राइट? तो मतलब व्हाट डू यू गाइस थिंक, व्हाट इज दैट एस्पेक्ट कि फ्रेंड्स सबको इतना पसंद आता है? लाइक इफ आई थिंक अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो है कि उसको तुम कभी भी उठा के देख सकते हो, ठीक है, पहली बार तुम्हें सीक्वेंस में देखना है टू अंडरस्टैंड कब क्या हो रहा है। बट दूसरे टाइम, जैसे दोनों ने तुमने बोला कि खाने खाते टाइम कभी भी उठा के देख लो, तुमको कोई भी एपिसोड अच्छा ही लगेगा, राइट? लाइक उसमें एक मतलब बहुत रेयरली कोई बुरे एपिसोड है, लाइक इट रेंजेस फ्रॉम 7 to 10 रेटिंग एपिसोड, ऐसा नहीं कि उसमें कोई 4 रेटिंग वाला एपिसोड होगा। तो हमेशा तुम एंटरटेन रहते हो, प्लस और अच्छा लगता है कि इस शो, लाइक अकॉर्डिंग टू मी, इस शो में कोई भी हीरो नहीं है, विच इज द बेस्ट पार्ट फॉर मी, कि ऑल 6 आर इक्वल। तो इस शो में कोई भी हीरो नहीं है, कभी किसी का स्टोरी दिखाते, कभी किसी का स्टोरी दिखाते, कभी किसी का स्टोरी दिखाते। दैट्स व्हाई आई थिंक, मतलब ये 2 चीजों की वजह से मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और ऐसा भी कुछ है क्या जो ये सारे के सारे कैरेक्टर है उनको सेम पे मतलब स्पेस के मतलब यस Yes. यस यस। Yes. तो या फन फैक्ट इसका ये है कि जितने भी कैरेक्टर्स है वो भी किसी को दिमाग में रख के नहीं लिखे गए थे, बट आई थिंक उस टाइम पे इन 94 डेविड श्विमर वाज द ओनली पॉपुलर एक्टर, मतलब इन लोगों में से। Yes. तो He was the highest paid actor in the first 2 seasons, I think. यस यस, एंड शो रनर्स ने भी सिर्फ रॉस का कैरेक्टर उसको दिमाग में रख के लिखा था कि ये यही प्ले करने वाला है, बट बाकी लोगों ने ऑडिशन दिया था, तो कॉर्टनी कॉक्स ने रेचल के कैरेक्टर के लिए। बट या आई थिंक अच्छा ही हुआ कि उसने खुद ही बोला कि मेरे को मोनिका प्ले करना है, बिकॉज मतलब अब इतना देख लिया कि मेरे से इमेजिन नहीं हो पाता है कि मोनिका रेचल, मतलब लग नहीं रहा है कि फिट बैठता, बट क्या पता। Then it happens, right? When you see somebody playing a character for such a long time, तो तुम नहीं imagine कर सकते उसको किसी और character में. For example, like in other series also, you can't imagine somebody else taking that place because you've seen them for such a long time.
yes. I think the reason why Friends is like so evergreen is because मतलब it is based on raw feelings. I mean उसमें ऐसा कुछ era के हिसाब से as such कुछ नहीं बनाया. Yes. It's like raw comedy and raw feelings of love and friendship. जो कि मतलब those feelings are always there. Like every generation will experience them. It's not specific to any particular generation, or it does not please to any sort of any particular type of age group. So Yes, that yes. is why it is so appealing till date to everybody. हाँ, उस पे जितने भी टॉपिक्स दिखाए गए हैं ना, लाइक वो ऐसा है कि नॉर्मल लोग भी दे एनकाउंटर हाँ, दैट मतलब फीलिंग exactly रोज की जिंदगी में it's very relatable, right? Those छोटी छोटी बातें इट्स वेरी very रिलेटेबल. लाइक आज ही मैं देख रहा था एक एपिसोड जिसमें कि वो वाला एपिसोड होता है जिसमें कि वो होता है ना जब वो लोग पार्टी वार्टी करते हैं एंड देन लाइक आई एम गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, जिसमें कि वो लोग पार्टी वार्टी करते हैं तो ये तीन लोग रॉस, मोनिका एंड चैंडलर, उनका थोड़ा पैसा ज्यादा होता है, बट अदर तीन स्टार्टिंग के सीजन में वो लोग थोड़ा कम कमा रहे होते हैं. एंड देन मतलब ऐसा हर फ्रेंड ग्रुप में हो, अभी नहीं होता है बट लाइक जब तुम लेट्स से कॉलेज में जस्ट एंटर किए थे, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में जब मैं एंटर किया था तो उसमें मतलब अलग हर टाइप के लोग थे, तो वो चीज भी होती है, राइट. एंड वो होता है कि एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होता है विच एवरीवन ट्राइज टू अवॉइड, बट अल्टीमेटली हो ही जाता है वो कॉन्वर्सेशन. एंड वो मैंने अपने टाइम में भी देखा है कि कुछ लोग बोलते थे कि हर बर्थडे पे हम इतना बड़ा पार्टी क्यों कर रहे हैं, मतलब, और ऐसा होता था कि हम जो चीज खा रहे हैं उसी का क्यों इक्वल स्प्लिट क्यों कर रहे हैं. मतलब बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, बट मैंने आज ही देखा इसलिए मेरे को याद आ रहा है कि ऐसा कॉलेज में हुआ है कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला होगा, फिर दूसरे लोगों को लगा होगा अच्छा ऐसा भी है. तो मतलब बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल चीजों पे उनका शो है. ऐसे कैरेक्टर्स तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, मतलब उनके जैसे लोग, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डिट्टो, बट दो तीन लोगों का कैरेक्टर्स मिक्स करके एक बंदा मिल जाएगा, ऐसा बहुत I है. doubt फीबी जैसा कैरेक्टर मिलेगा. फीबी जैसा कैरेक्टर थोड़ा रेयर होगा ढूंढना असल जिंदगी में. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे ही सोच के बनाया, जैसे कि एक लड़के को, गाइस की बात करते हैं, जैसे लड़के को स्प्लिट कर दिया उन्होंने, राइट. जैसे एक लड़के का क्या पार्ट होता है, एक मतलब एक क्यूट फनी बंदा है चैंडलर, गुड लुकिंग फ्लर्टेशियस बंदा है जिसको बंदियां बंदियां मिलती है जोई, एंड एक रॉस है जो लाइक पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा है, स्टूडियस एंड लाइक मतलब मैरिएबल गाय टाइप जैसा बोला जाता है, मतलब वैसा बंदा है, राइट. तो उन्होंने स्प्लिट कर दिया. सिमिलरली गर्ल्स पे भी मुझे लगता है कि रेचल जैसे सेक्सी बंदी को दिखाया गया, उसमें मोनिका को दिखाया गया कि क्यूट क्यूट बंदी दिखाया गया जो एम्बिशियस है क्या करियर में एंड ऑल. फीबी को दिखाया गया क्वर्की फन, मतलब थोड़ी क्रेजी बंदी है. तो स्प्लिट कर दिया सब कुछ, ऐसा फील होता है. तो बट हाँ, लड़के जब देखते हैं फ्रेंड्स, मतलब प्रबोध तुमको क्या लगता है जब लड़के देखते हैं, हम लोग किस चीज से ज्यादा तुम किससे रिलेट करते हो ज्यादा? मैं मैं बाद में आता हूँ पहले ताने से. हाँ तानिया, तुम Like I mean obviously not Phoebe. That's a very extreme character in my opinion. I do like I do like that character as much, but I think I relate with Monica a lot for various reasons. That I'm not exactly a control freak, but I like to call the shots, and I love cooking. Those kind of things, like Monica wali. I feel I have a lot of characteristics of Monica. या आई What about फील कि मैं शायद चैंडलर से ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि मतलब पहले तो नहीं बट आजकल ज्यादा रिलेट करता हूँ. लाइक कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे क्या कोई जोक मारना चाहिए, मतलब या कुछ फन बोल देना वहाँ पे. और बाकी वो डेटा वेटा, मतलब उसका जॉब भी जैसा है कि हम लोग भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, बट उसको एक एडवर्टाइजिंग या क्रिएटिव साइड में जाने का इंटरेस्ट होता है अंदर से, मतलब पैशन वाइज. मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे को भी शायद ऐसा कुछ करने का मन है. At the same time he's happy at job also, मतलब at least till 7-8 season, तो वैसा सेम भी ऐसा फील होता है. मतलब प्रमोद भाई, मतलब हाँ, मेरे को अगर कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो चैंडलर तो बेस्ट लगता है. मतलब उसका मतलब जैसे मैं एक इंटरव्यू देखा था
तो उसमें ऐसी था कि मतलब उसका शायद तक जो उसका जब इंटरव्यू या फिर कुछ जो भी हो रहा था, तो जब जो उसको कास्ट कर रहा था, तो उसको कैरेक्टर को लेके जाता है, और उस टाइम जब तक वो कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ रहता, मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसको ऐसा बोलता है कि तुम इस कैरेक्टर में क्या देखते हो, मतलब शायद तक उसी से पूछते हैं, या फिर बताता है, एग्जैक्टली भूल गया हूँ। तो उसमें बोलता है कि वो एक ही बंदा, मतलब जैसे ऑकवर्ड साइलेंस नहीं झेल पाता, उसको बोलना ही रहता है, ठीक है, उसको मतलब कुछ ना कुछ वो बिल्कुल बिना जोक मारे रह नहीं सकता, और मतलब ये सब मतलब सही लगता है मुझको। हाँ, मतलब रिलेटेबल अलग हो गया, और फेवरेट कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर, अगर सिर्फ कैरेक्टर बोले, मेरा फेवरेट तो रॉस है। मतलब मतलब एक्टिंग वाइज भी और कैरेक्टर, क्योंकि उसके साथ सबसे ज्यादा चीजें होती है, मतलब हाँ, फन है बहुत। लाइक उसकी बीवी लेस्बियन निकलती है, उसका बच्चा हो जाता है, फिर रेचल के साथ बच्चा हो जाता है, और मतलब वो चिल्लाता है, सैंडविच वाला स्टोरी बहुत फनी, एलर्जी फिर होता उसकी है। और भी ऐसी चीजें है ना, जैसे कि वो हाँ हमेशा उसके दांत कभी वाइट हो जाते, कभी वो टैन हो हाँ, जाता है टैन हो जाता है, वो लेदर पैंट्स अटक जाते हैं उसके, मतलब बहुत ही फनी चीजें होती है उसके साथ। तो और मैंने आज देखा था कहीं पे बॉलीवुड मोमेंट्स जहाँ पे फ्रेंड से कॉपी करा गया है, तो ऐसे रॉस मोमेंट्स बहुत जगह है। लाइक कोई एक सोहेल खान और सम अदर एक्टर की मूवी है, डिट्टो सेम टू सेम वो लेदर पैंट्स वाला सीन कॉपी है। और जैसे बार का लाउंजर सीन का, कल होना हो में भी जोई चैंडलर मोमेंट्स बहुत कॉपी किए उन्होंने, कुछ कुछ। बिटवीन शाहरुख खान एंड सैफ अली शाहरुख खान। खान और सैफ अली खान, तो मतलब फ्रेंड्स बहुत ही पॉप कल्चर, वो तो है। या बट वही मेरा क्लोज कंफ्यूजन होता है अगर प्योरली कैरेक्टर और मोमेंट्स पे देखा जाए, तो जोई और रॉस के बीच में, क्योंकि जोई के भी बहुत फन मोमेंट्स है, लाइक बहुत आइकॉनिक मोमेंट्स है। I think my answer would be Joey. Yes, and I also like those. I don't like those moments, those initial interactions between Joey and Chandler. I think those are one of my, हम्म। वो उनकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड जो भी सीन्स दिखाते हैं, those are one of the best scenes according to me in the हाँ series. हाँ वो रहता नहीं जिसमें बोलता है कि हम एक जैसे चैंडलर और साथ में मोनिका होगा ना, कि हम अपना घर ऐसा होगा ऐसा हाँ होगा, we'll have a जोई रूम। Yeah, हाँ हाँ Joey. हाँ, मतलब बहुत दो दो ही मोमेंट्स है जिसमें मैं इमोशनल होता हूँ फ्रेंड्स में। एक वही है जब चैंडलर बोलता है कि, जोई से ही बोलता है, डिड यू थिंक दैट विल हैव अ होम एंड नॉट हैव अ जोई रूम। और एक वो वो होता है एंड जब, में होता है। हाँ, और एक हाँ, वो वाला मोमेंट जब जब जोई घर छोड़ के जाता है, और फिर वो दरवाजे के इधर रहता है चैंडलर, और वापस वो नॉक करके उसको हक करता है पीछे से, और फिर चला जाता है दरवाजा खोल के। हर टाइप के मोमेंट है, फनी प्लस इमोशनल फ्रेंड्स में। बट अगर और भी एक और इंटरेस्टिंग बात है ना, इसमें साइड कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो लाइक व्हाट आर सम ऑफ योर फेवरेट साइड कैरेक्टर्स? फॉर मी इट इज रॉस और मोनिका का पापा, मेरे को फेवरेट लगता है वो oh साइड yeah, कैरेक्टर। that's fun. मतलब बहुत फनी आदमी लगता है, और उसका बोलने का तरीका, मतलब आई रियली, वो जब भी आते हैं इट्स अ फन मोमेंट। और सबसे बेस्ट मेरे को बेस्ट नहीं, मतलब जो अभी मेरे को याद आ रहा है, तो जब हाँ उसका सॉरी अपना इसका बच्चा होता है ना अपना रॉस का, मतलब हाँ, जो उसके साथ रेचल के साथ, रेचल के साथ। माँ। तो क्या बोले कि ओ माय फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड। अच्छा, वो बोलता है, बहन के बारे में भूल जाता है। ग्रैंड चाइल्ड ऐसे बोलते होता है, उसके बाद फिर वो फिर ऐसा घूरते रहता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, दूसरे बच्चे को, हाँ फिर रॉस आता है, ऐसा करता है। ये है। हाँ हाँ एक बात जो फनी है, वो शुरू में पाउलो आता था ना, सो उससे पूछा कि व्हाट डिड यू डू, तो कहता है आई डिड रकेल। हाँ वही, फनी था अरे ऐसे, ऐसे रखेल, करके आई डिड रकेल हाथ में ला। रखेल, रखेल। बट That हाँ, was so funny. और फन साइड कैरेक्टर्स कौन है, लाइक अगर देखा जाए, I think मुझे, सबसे कॉमन अक्सेंस तो जैनिस का है, like we can't हाँ, forget Janice. जानिस, Although she's, yeah, nobody likes her. I don't know. I don't think if she has fans, that बट character, मस्त but yes, कैरेक्टर है। that. और अपना वो भी ना ये क्या नाम जानिस है, से एक पॉइंट याद उन्होंने आया ना मुझे। इंटरेस्टिंग जगहों पे, हर जगह पे डाला हुआ है कि जहाँ पे भी हाँ चैंडलर मोनिका की लाइफ में एक थोड़ा सा हाई आ रहा है, वहां पे चलो जैनिस को एक हाँ, पॉइंट पे डाल दो। जानिस से मेरे को एक चीज याद आ रहा है कि ऐसे ही मैं फ्रेंड्स का ये करने की सोचा, तो मैंने देखा ऐसे स्पिन ऑफ्स वगैरह देख,
इंडिया में भी एक फ्रेंड्स का वो बना है, नकली शो, मतलब स्पिन ऑफ। तो उसका नाम है हेलो फ्रेंड्स आई थिंक, जिसमें ये लोग हैं, निखिल चिनप्पा, साइरस, और लड़की में शायद पता नहीं कौन है, नाम नहीं पता मुझे। बट उसमें हर एक कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है वो भी जानिस जैसा ही है। मतलब इतना बेकार है वो, इतना बेकार है। बहुत ही गंदा शो है। I think there was something going viral in between, ऐसा है फ्रेंड्स का कुछ पॉपुलर हो रहा है, तो मैंने उसको फर्स्ट वाला एक क्लिप देखा था, हाँ हाँ वही। जिसमें कि कोई शादीशुदा लड़की ऐसे, मतलब कोई लड़की शादी वाले कपड़ों में शी इज एंटरिंग दैट, एंड इट वाज सो क्रिंज वर्दी दैट आई नेवर लाइक क्लिक्ड ऑन दोस वीडियोस अगेन। एनीवे हाँ, साइड कैरेक्टर और कौन थे फन वाले? आई थिंक फीबी का भाई भी फनी था, मतलब हाँ, I mean I was not very excited about it, but yeah, it हाँ, was a fun addition. मतलब जब जब आता था उसका भाई, मतलब कभी कभी मस्ती कर देता था वो बीच बीच में। और कौन है? गंथर, गंथर भी मस्त लगता है मुझे बीच बीच में। वो जो सिगरेट वाला एपिसोड होता है, उसपे गंथर आके बोलता है कि ओह लॉर्ड, आई अगेन सकल एट योर स्मोकी टीथ। इतना खतरनाक एक्सप्रेशन से बोलता है, बहुत फनी होता है। गंथर भी मस्त लगता है मुझे। आई थिंक साइड कैरेक्टर ये लोग, बाकी गेस्ट अपीयरेंसेस तो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है उसका डेनीज रिचर्ड्स वाला, जब वो उसकी कजिन होती है लेकिन बाल खोलती है, तो सब लोग That's one of my favorite episodes actually. It's just so hilarious. वो बाल खोलती है और सब वो देखते ही रह जाता है, रॉस, मोनिका भी, फीबी भी। पहले चैंडलर, फिर होता है, फिर रॉस होता है, फिर कहते हैं शी इज योर कजिन। हाँ उसकी कजिन होती है, बट उसको मूवी दिखाता है। जूलिया रॉबर्ट्स आई है, रॉबिन विलियम्स आया, ब्रूस विलिस आया है। जब उसका वो जो पापा होता है, वो कॉलेज वाली बंदी का पापा जो होता है, ब्रैड का पापा, हाँ, वो भी बहुत फनी होता है। ब्रैड पिट अपना। ब्रैड पिट आया है। और ब्रैड पिट का ये बहुत सही लगा था कि मतलब ऐसा नहीं कि वो रेचल का बॉयफ्रेंड बना के लाए, बट उसको ऐसे लाए कि उसको हेट करता है, मतलब कोई पुराना। उस टाइम डेट कर रहे थे ना वो? आई थिंक उस टाइम शादीशुदा थे वो लोग, अच्छा। हस्बैंड No वाइफ idea. थे। हाँ तो उसमें ऐसा, वो पैसे वाली बात पे हम कंटिन्यू करना भूल गए कि वही, तो रॉस को ही फिर बोला था कि तुम्हारा सैलरी बढ़ा रहे हैं, तो रॉस ने ही बोला था, ये जो तान्या ने बोला कि सबका सैलरी इक्वल रखना चाहिए। तो 5th सीजन से उनको $1 million पर एपिसोड मिलने लगे। उससे पहले आई थिंक रॉस को ही ज्यादा मिलता था, इन लोग को कम मिलता था। तो और फ्रेंड्स में पूरा वो भी दिखता है ना कि जो अपना टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है, कि शुरू में मतलब लैपटॉप, मतलब फोन था, फिर लैपटॉप आया, एक दिखता है कि यार कहाँ से कैसा कहाँ पेजर भी यूज करते थे वो बीच में। पेजर मोबाइल नहीं होता था, पेजर होता था, बीप करते थे। पॉपुलर थिंग्स दैट फ्रेंड्स हैज गिवन बर्थ टू, सबसे बड़ा होगा तो फ्रेंड जोन। यस, फ्रेंड जोन मतलब आजकल सबसे कॉमन है, बट उस टाइम देख, मैंने पहली बार जब देखा था मेरे को रियलाइज नहीं हुआ था कि अच्छा हाँ फ्रेंड जोन बोल गया है, बट बाद में सुनने के बाद अच्छा यहाँ से आया है, वो बिल्कुल एकदम से निकल जाता है। बट मुझे ना हम तीनों में भी वो वाला मेमोरी याद है कि हम लोग लंच कर रहे थे, एंड ये एपिसोड प्रमोद के लैपटॉप पे चल रहा था, एंड देन यू स्पेसिफिकली हाईलाइटेड पीयूष, प्रमोद भाई ये देखो यहाँ से फ्रेंड जोन का पैदाइश हुआ है। रिमेम्बर दैट मोमेंट वहाँ पे लंच करते हुए तुम्हारे फ्लैट में जब ये डिस्कस हुआ था, एंड तब प्रमोद ने शायद वो एपिसोड पहली बार देखा था। और वो वर्ड बनाया जोई ने। जोई ने बना, you're in the friend zone। मस्त है। जोई का कुछ वो याद करो कि इंटेलिजेंट मोमेंट्स ऑफ जोई। The line is a dot to you। हाँ वो वाला मस्त लगता है, you saw so far away from the line is a dot to you, मस्त लगता है। मुझे बहुत ही क्लेवर लगा था वो, बहुत ही क्लेवर लगता है। जोई के इंटेलिजेंट मोमेंट याद करना मुश्किल है। और एक मेरे को याद आ रहा है कि वो शायद तक एक बार ना वो वहां पर बैठ के कॉफी पीते रहते हैं और डिस्कस करते हैं कि मतलब मेरे को मेरा बॉस हेट करता है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा। वो हाँ कि all of you are sitting here on a Wednesday at 11 AM। वाला
I think Joey ने मतलब relationship advice पे when it has come to that, he is always given intelligent advices. But like apart from some funny moments, of course, but हाँ obviously ऐसी चीजों में तो he has always been shown in a certain way. गैग्स पे आते हैं, इस पे पूरा एक बात करेंगे. बहुत सारे गैग्स, मतलब फेमस गैग्स एज इन फॉर एग्जांपल अगली नेकेड गाय, मतलब एक रनिंग चीज जिस पे जोक चलता रहता है फ्रेंड्स पे, इस पे आते हैं अभी. बट उससे पहले हाँ, तुम लोग को पता है फ्रेंड्स का, कैन यू गेस? 4 अलग अलग नाम थे. लेट्स ट्राई टू गेस कि क्या क्या हो सकता है. वैसे तो I mean there are so many possibilities. It's hard to हाँ guess. मतलब या अगर नहीं पता है तो फिर नहीं गेस कर सकते. बट या सो द फर्स्ट ऑप्शन दे हैड वाज इंसोम्निया कैफे. तो मतलब ऐसा था कि कॉफी पीते रहते, सोते नहीं और बात करते रहते हैं. तो I remember one of the options was Central Perk, right? सेंट्रल नहीं? पर्क तो नहीं One था, of ये the names. इंसोम्निया कैफे ही था. मतलब वो कैफे का सेंट्रल पर्क बाद में नाम रखा था. पहले शायद कैफे का नाम भी इंसोम्निया कैफे ही होने वाला था. और एक और ऑप्शन था ये कि अक्रॉस द हॉल, क्योंकि उन दोनों का घर साइड में रहता है, तो ऐसे अक्रॉस द हॉल वो था. और रॉस भी थोड़ा उधर ही रहता है. और उसके बाद एक और ऑप्शन है 6 of 1. द वन विद द इसलिए द 6 of 1 ऐसा था कि वन विद द करेंगे एंड 6 of 1 उनको एक जोड़ी बोलेंगे. और एक और था फ्रेंड्स लाइक अस, जो कि मतलब सेकंड लास्ट टाइटल था कि हाँ फ्रेंड्स लाइक अस रखेंगे. उसके बाद उन्होंने सोचा हटाओ, फ्रेंड्स ही रखते हैं, बहुत कैची लग रहा है. तो अच्छी बात है फ्रेंड्स रखा, और बढ़िया ही है. मतलब इससे ज्यादा बेटर नाम और एप्ट नाम तो नहीं हो सकता था. या सो मूविंग ऑन टू वो कि फेवरेट मोमेंट्स एंड एपिसोड्स. या फेवरेट मोमेंट्स एंड एपिसोड्स करते हैं. सो प्रमोद, तुम्हारा फेवरेट मोमेंट एपिसोड कुछ भी क्या है? गिव मी टॉप 3. ओके, एपिसोड तो याद नहीं आ रहा, बट मैं आज हाँ मतलब ऐसे हाँ मतलब वही अपना जब इनका जो डेटिंग करते रहते हैं मोनिका और सॉरी अपना Chandler, ये सब they know that we know. That would have been my first pick also, yes. टॉप. हाँ मतलब यार एक्चुअली टॉप 3 करना बहुत मुश्किल है, बोलते रहो. हाँ. But yeah, that was like hilarious. उसी टाइम में वो वाला जब एपिसोड होता है ना, कि जब रॉस देख लेता है, रॉस देखने वाला होता है दूसरे घर में जाके, बट रेचल और फीबी उसको वैसे जंप करके हूट करने लग जाता है, फिर रॉस भी उनके साथ डांस करने लग जाता है और दे ही देखता है. लाइक आई थिंक वो तो मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड्स रहा है. बहुत ही फन एपिसोड है. माय फ्रेंड एंड माय सिस्टर. हाँ डेटिंग also my friend and my sister. इसीलिए यार ये सब जो छोटी छोटी चीजें करता है ना रॉस, बिल्कुल एक्सट्रीम में करता है, तो बहुत बहुत मस्त कैरेक्टर लगता है मुझे. वो एक फ्लैट चेंज वाला जिसमें वो दे compete to see कि कौन सा फ्लैट है किसका. I like that duck और chick वाले moments were also like amazing. हाँ उसपे वही आई थिंक वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एपिसोड्स है, फ्लैट चेंज वाला क्विज वाला जो होता है. हाँ उसमें मतलब इतना फन क्विज है यार, वो इतना फनी होता है कि मतलब बोलता है कि चैंडलर के उसका नाम क्या है, तो वीवा ला गेगस, ये सब होता रहता है. एंड मोनिका के कितने टाल्स है, तो एकदम रैंडमली 17 बोलता है वो, और सही हो जाता है. और वो कि चैंडलर के जॉब का नाम क्या है, तो समथिंग डेटा ट्रांसपोंडर नॉट इवन द वर्ड. वो पूरा एपिसोड ही बहुत ही मस्त है. वो क्विज बहुत ही मस्त है. और फिर वो पूछता है ना मोनिका का नाम, पूछता है क्या नाम था, तो वो बहुत फट से आंसर देते हैं, बिग फैट गोली. तब एक वो था I love all of these Thanksgiving episodes, but एक में था जिसमें कि you know they have that match, right? ये 3 टीम्स में हो जाते हैं.
बहुत So, बहुत I बहुत think funny. that episode had a lot of hilarious moments. Like वो Phoebe अपना टॉप उतार के भागती रहती है, and then हाँ they try to please that Dutch girl. हाँ उधर तो Joey random shit फेल रहा है कि यहाँ पे मैं हाँ, वो Netherlands. पेंसिल्वेनिया डच, और उसपे वही वो आई थिंक वो गेलर कप वाला है, गेलर कप के लिए लड़ते हैं Killer कप वाला. और वो फिर वो दोनों end एंड। में वो दोनों पकड़ के बैठे रहे होते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं. और मुझे वो एपिसोड भी वही है, फ्रेंड जोन वाला एपिसोड जो नाइट आउट वाला होता है, बहुत बहुत बेस्ट एपिसोड लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, जिसमें I like that because of that, एटीएम you know, एटीएम ATM वेस्टिवल vestibule wala conversation between Chandler and Joey. He's like, I'm from, and then he understands, you know. स्टार्ट इन एन एटीएम वेस्टिबल जिल गुडेकर। इतना फनी होता है ना, मतलब बहुत ही उस टाइम कहीं पे भी ऐसा नहीं आया था, मतलब वो ब्रोमांस वाला शो ऐसा दिखाने वाला, बट बहुत ही सही था। और उसमें मतलब और चैंडलर का भी बहुत फनी होता है उसमें, उस मॉडल के साथ की गम हाँ गम वुड बी परफेक्शन। बहुत ही सही होता है। And then और he picked a gum which was like already used by somebody else. और इसमें वो भी होता है ना, जब वो चली जाती है तो वो सीसीटीवी कैमरा में देख के बोलता है कि जिसके पास भी रिकॉर्डिंग है, हाँ. मेरा अकाउंट नंबर ये है, प्लीज मेरे को भेज दो। और फिर वो ऐसे कांच पे ऐसे उसको देखते बहुत फनी होता है। कमांडो वाला भी मुझे बहुत, जब वो जो ही सारे कपड़े पहन के आ जाता है चैंडलर के, बोलता है आई एम गोइंग कमांडो। हाँ, वो वाला भी बहुत funny था. Yes, yes, yes. वो भी थैंक्सगिविंग में ही होता है, क्योंकि आई थिंक उनकी कुछ एक और पार्टी रखी नहीं, होती है वो उन्होंने। वो ऐसा कुछ होता है कि रॉस की कोई ऑफिस पार्टी होती है एंड ही इज हाँ लाइक टेलिंग कि यू नो रेडी हो, चल नहीं रहे हो, एंड देन हाँ मोनिका फक्स अप दैट रिचर्ड्स वाला वो हम्म। क्या कहते हैं फोन वाला रिकॉर्डिंग. आई थिंक और रिचर्ड वाज अ नाइस कैरेक्टर. रिचर्ड वाज आल्सो नाइस, मतलब वो खुद से कॉमेडी नहीं करता था, बट हाँ ही वाज हाँ, मतलब नेसेसरी ही वाज अ गुड कैरेक्टर। एडिशन टू द होल थिंग. और वो वाला भी एपिसोड यार, जिसमें रेचल केक बनाती है और वो जोई खा लेता है गंदा सा केक, तो व्हाट्स नॉट टू लव, जैम गुड, ये गुड, बीफ गुड। और रॉस मस्त बोलता है इट्स टेस्ट लाइक फीट। एक मोमेंट जोई वाली जो खाने की मोमेंट्स है, दे आर वेरी फनी. सो एक जिस एपिसोड में उसका एक्चुअली में इस बारे में बात करते हैं ना, तो जिसमें रेचल बोलती है नो इट वाज एमा, उसको अपने ग्रेप्स नहीं शेयर करने दे हाँ रहा था, एंड देन ये प्रमोद भी बोल रहा था उसका फेवरेट है। हाँ, उसमें एंड में वो लड़की का वो डेजर्ट खा लेता है, एंड देन ही इज लाइक आई एम नॉट इवन सॉरी. doesn't share food. रॉस के टैन वाला फनी है, रॉस वो पैंट वाला बहुत फनी है, रॉस का सैंडविच वाला बहुत फनी है, और टीथ बाइट हो जाते हैं उसके. ईथ वाइट वाला बहुत फनी है, वो उसके कजिन के साथ बहुत फनी है। बहुत फनी मोमेंट्स है यार उसके। एक बार जैसे रॉस को एक साथ एक कार लेता है ना और सबको घुमाने के लिए, हाँ मतलब 2-3 बार आगे पीछे करता है, फिर भी who's next? और उसमें वो इतना फनी तरीके से एक्टिंग करता है ना, वो जैसे बिल्कुल ऐसे जोश में पार्किंग करता है, ऐसे आगे करता है पीछे करता है, पिवट वाला। ओ भाई ये तो हाँ गैग्स में चलो आते हैं गैग्स पे, तो पिवट वाला बहुत फनी गैग है, मतलब जैसे टी शर्ट्स में प्रिंट होता है पिवट वाला, बहुत ही अल्टीमेट है। उनागी वाला बहुत फनी है, उनागी डराते, हाँ ऐसे होता है, सॉरी उनागी। और ये जोई डजंट शेयर फूड है, अगली नेकेड गाय है, रूटीन बिटवीन रॉस हाँ एंड मोनिका, रूटीन बहुत मस्त है। मतलब ये सब मुझे एक्चुअली रॉस और मोनिका का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा लगता है, तगड़ा है काफी, मतलब प्रॉपर भाई बहन दिखा है, मतलब वो पेलते भी एक दूसरे को और प्यार भी करते हैं, मस्त है, मतलब काफी सही है उनका। और जोई का एयर कोट्स, जोई का एक अरे जोई की इंटेलिजेंस वाली बात से लाइक इट वाज लाइक आई थिंक इट वाज वन ऑफ लाइक it was nice when he invented that sex story, और जिससे कि you know like you listen to that story और हाँ कोई हाँ भी मैं भी बोलने वाला था, but I mean that was pretty intelligent, like it has such a profound effect, यस like यस मैं कोई उससे भी यही ऐसे बोलने वाला सुन के था होता है. कि वो एपिसोड बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि जिसमें वो एंड में टेप देखते हैं एंड देन सब लोग रेचल को बोलते हैं कि यू केम ऑन टू है, और वो केन एडम्स वाला, हाँ जो ही मतलब बहुत अच्छा इन्वेंट करता है वो। और एक बार भी याद आ रहा है कि जब लास्ट में रेचल छोड़ के जाती रहती है तो सब उसको बोलने जाते हैं कि ऐसा ना
और क्या बोलते हैं, जो एकदम स्ट्रांग, नहीं रो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसके अंदर हो जाता है उसके। आई थिंक जो इज हैंडलिंग वेल। और वो कूदने वाला होता है। मुझे उनका वो पूरा लंदन वाला भी मस्त लगता है, वो जो जाते हैं पूरा घूम घाम के आते हैं। Yes, agreed. और एक याद आ रहा है मेरे को जोई का, कि बर्थडे वाला, कि बोलता है कि मतलब बर्थडे में रोता नहीं है, and it is growing so old, why God, why मुझे Character. फीबी, हाँ फीबी और वो वाला उर्सुला वाले में कोई एपिसोड्स आई somehow don't like them. I mean they don't add on to anything. मेरे को ये वाला भी अच्छा लगता है, बेन वाला, उसको बस में छोड़ देता है चैंडलर और जोई। मस्त होता है वो। जैसे जब वो जोई घर छोड़ के जाता है तो वो वाला एक बहुत इमोशनल सा गाना चलता है ना, हाँ, ऑल बाय माई सेल्फ, ऑल बाय माई सेल्फ, एंड देन वो दोनों जोई उसमें अपना वो छोटे से फाउंटेन से जो शोपीस होता है उसमें से उसका मुंह दिखा रहे होते हैं, दोनों खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं, चैंडलर और जोई वाले सीन्स अच्छे थे। चिक एंड डक वाला भी बहुत सही है, जब वो एक मेरे को याद है वो बोलता है कि कैन अ चिक स्विम और अ डक स्विम, वो छोटा वाला जो होता है, फिर वो उसको डाल देता है पानी में, लेट्स चेक डाल देता है, फिर वो डूबने लग जाता है, आई थिंक दे कांट, फिर निकाला। बहुत फनी होता है, मतलब जो ही इंटेलिजेंट मोमेंट्स में लेट्स चेक पानी में डाल देते। चक चक बोल रहे हैं उनको या डिक बोल रहे हैं? हाँ, फिर उसमें वो भी होता है ना कि वो ये बस वाले में वो बच्चा भूल जाते हैं, फिर मतलब वो मिलता है तो दो बच्चे होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाता कौन सा आता है, तो जो ही बोलता है लेट्स फ्लिप फॉर इट, तो बोलता है कि मतलब हेड्स किसका टेल्स किसका, तो बोलता है हेड्स इसको देते हैं क्योंकि इस बच्चे ने डक्स वाला पैंट पहना है एंड डक्स हैव हेड्स। चैंडलर बोलता है व्हाट काइंड ऑफ स्कैरियस क्लाउन्स केम टू योर बर्थडे, जिनका मुंडी नहीं होता। जब वो इंसाइक्लोपीडिया खरीद लेता है जो ही सिर्फ वी वाला, बहुत फनी लगता है। वेसुवियस, वल्वा, कुछ भी बोलता है। इसकी बात करते हैं आप। और उसका वो लेटर लिखता नहीं, थिसोरस उसको बता देता है अपना रॉस थिसोरस लगाता है वो। अरे हाँ, ओ हाँ, एंड में like he sends that letter. It's like it's so nice you got a kid to write a letter for you. 8-9 years kid wrote a letter. मस्त है यार वो उनका। बाकी हाँ, लव स्टोरी वाइज तो चैंडलर मोनिका का बहुत ही मतलब प्रॉपर अच्छा, जैसे फ्रेंड्स है वो बनते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लव स्टोरी है काफी। रॉस रेचल का मेरे को एक्चुअली इरिटेटिंग लगता है, बट वो इरिटेटिंग है, थोड़ा रियलिस्टिक भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बट ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा जो नहीं लगा था ना वो रॉस रेचल और जोई वाला था। आई थॉट इट वाज वेरी आउट ऑफ प्लेस। हाँ यस, जबरदस्ती ऐसा, हाँ तो बहुत ही आउट ऑफ प्लेस था वो, मुझे बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आया था। और जैसे I would have expected like Joey and Phoebe to end up together क्योंकि सारे फ्रेंड्स आपस में कपल, बट ऐसा उन्होंने दिखाया नहीं। सो हाँ, फीबी तो माइक से शादी कर लेती है, तो माइक से हाँ कर लेती है वो। याद है जब अपना ये जाता है क्या बोलते चैंडलर बाहर, यमन, तुलसा तुलसा, dude I think Monica is cheating on you. I told you not to date a girl hotter than you. हाँ, ये बहुत सही है। वो इसलिए मना कर होता है क्योंकि उसके लिए वो निक्स के गेम के पासेस खरीदा होता है कि आज देखने जाएंगे। फिर वो सॉरी वॉरी बोलता है चैंडलर, और फिर एंड में जा रहे होते हैं, फिर एकदम से देखता है तो बोलता है कल है मैच भाई। और वापस आ जाता है कि कल का डेट है, जो ही आज कर रहा है, और जो ही फनी सा एक्सप्रेशन देता है। सबसे फनी जोक पूरे शो का मेरे लिए वो था कि यही जब इनका ऑन अ ब्रेक वाला फाइट होता है और वो सब घर में बंद होता है, याद है? फिर वो बिल्कुल होता है सब कुछ, तो फिर वो जोई ने एक डब्बा रख लिया होता है जिसमें सब कुछ भरा होता है कि हम क्या करेंगे, वैक्स खाएंगे या जो भी। तो फिर वो कहता है कि चैंडलर बोलता है कॉन्डम्स रखे हैं तूने, व्हाई हैव यू केप्ट कॉन्डम्स? तो वो बोलता है कि यू डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग विल बी स्टक हियर, ऐसा हो सकता है कि वी माइट हैव टू स्टार्ट द पॉपुलेशन अगेन, सब मर जाए बाहर। तो कहता है, और चैंडलर बोलता है अच्छा, एंड कॉन्डम्स आर द वे टू डू दैट। इतना एपिक था ना, इतना बहुत हंसा था, गिर गया था। फनी डायलॉग्स लाइक ऐसी वाली जो भी फनी और मोमेंट्स है, they all mostly belong to Chandler एंड जोई, और वो डायरेक्टेड एट जोई, ऐसे ही है मोस्टली। हाँ,
बहुत ही सही है। ऐसे तो फ्रेंड्स की बात करते ही रह जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट सम स्पिन ऑफ्स, नॉट स्पिन ऑफ्स बट अदर शोज, सिटकॉम्स की बात करते हैं, जो कि मतलब आई थिंक वी ऑल अग्री कि फ्रेंड्स ही बेस्ट है। बट व्हाट आर सम ऑफ द अदर गुड सिटकॉम्स? एंड लाइक फॉर मी, लाइक हाउ आई मेट योर मदर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है फ्रेंड्स से, बट या डेफिनेटली मतलब वो ऐसा है कि तुम कॉन्टिन्यूअसली देख सकते हो कहीं से, बिकॉज उसमें टाइम का बहुत होता है और इट प्लेज मोर ऑन इमोशन रादर देन ऑन फन। मतलब ऐसा नहीं हर एपिसोड फन होगा, कुछ इमोशनल एपिसोड्स भी होते हैं, और तो मतलब मोर अबाउट कपलिंग एंड वो सब है। बट वही है कि उसमें 5-6 सीजन ही अच्छे हैं, एंड बिल्कुल बेकार है। फ्रेंड्स में सारे सीजन अच्छे हैं, मतलब एक दो थोड़े हो सकते हैं, बट लाइक इसके लास्ट का 1-2 सीजन तो बहुत ही गंदे हैं, इसलिए वो पीछे रह जाता है। I think मतलब मैं I would say Big Bang is comparable because the Big Bang also उसका एक अलग खुद का aura है. It has its own theme, but I think like these shows can't be categorized in spin-offs. But जैसे कि let's say एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा जो स्टोरी सा है कि इस एपिसोड में ऐसे Yeah, है, not तो वो spin-off, I feel but like, sitcoms, yeah, काफी sitcoms. हाँ काफी वो उनसे वो लिया हुआ है, like थोड़ा सा इंस्पायर्ड है फ्रेंड से. तो एक एपिसोड का छोटे छोटे पार्ट्स, नॉट द होल स्टोरी ऑब्वियसली. But yes, like comedy wise, if you see, so like these go at the top. I think I have not seen Office, but I think Office is also pretty popular. The साइनफेल्ड Office. भी देखा है क्या तुम में से किसी ने? साइनफेल्ड बहुत सुना है बट देखा तो नहीं है। आई थिंक साइनफेल्ड पहला शो था जो ऐसे लाइव ऑडियंस में जो हंसते हैं ना पीछे जब बोलते हैं, जो शूट होता था। आई थिंक साइनफेल्ड पहला था, I think देन फ्रेंड्स Big हुआ। Bang was the last to be shooted in front of a live audience, I think. मॉडर्न फैमिली थोड़ा और हाई क्वालिटी है, मतलब Modern वो Family हाँ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन मतलब है तो वो भी कॉमेडी सिटकॉम, बट जैसे इन सब शोज का एक लुक होता है ना, मतलब वो एक टाइप का फ्रेम है या एक टाइप का कलर स्केल है, जैसा होता है ना वो लाइव ऑडियंस वाला, मतलब देख के समझ में आ जाता है कि इस टाइप की जगह पे शूट किया गया है। बट मॉडर्न फैमिली प्रॉपर एक घर वर में बड़े से प्रॉपर्टी में शूट हो रहा है, मतलब थोड़ा अलग दिखने में अलग है। मॉडर्न फैमिली वैसे भी उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है ना, लाइक दे आर लाइक पीपल इंटरव्यूइंग, दे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल आल्सो इसमें, मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. और वो पूरी 3 फैमिलीज पे बेस्ड है, जो कि फैमिलीज भी आपस में बहुत ही मेस्ड अप तरीके से रिलेटेड है. प्रमोद, आई नो तूने नहीं देखा है, तो देखेगा, यू लव इट. मॉडर्न मॉडर्न फैमिली फैमिली बहुत अच्छा है भाई, बहुत मतलब बहुत पॉपुलर है, बहुत सही है। अवार्ड्स मिले हैं. न्यू जमाने में मतलब मेरे को एक्चुअली फ्रेंड्स के बाद सबसे अच्छा मॉडर्न फैमिली लगता है। मतलब बिग बैंग थ्योरी भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, हाउ आई मेट योर मदर तो छूट जाता है, मतलब उसके मोमेंट्स है बट छूट ही जाता है। ऑफिस तो देखा नहीं है, बट हाँ मॉडर्न फैमिली काफी अच्छा है। शिट्स क्रीक के बारे में बहुत सुना है बट देखा नहीं है। Oh, I have to, like, I should have taken Schitt's Creek and Modern Family का name in the beginning of this episode when you asked, but Schitt's Creek is amazing. Each and every season of it is just amazing. उसको भी बहुत awards मिले, and it's very small also, like 6 seasons है, उन्होंने एकदम perfect time पे उसको end करा है, like ज़्यादा drag नहीं करा जबरदस्ती का, so it's amazing to watch. ये कब के सीरीज है मतलब? Schitt's Creek अभी recently ही, मतलब नया last शो season उसका खत्म हुआ है. मॉडर्न फैमिली तो जैसे 2009-10 का स्टार्ट हुआ है हाँ, शायद, आई थिंक। मॉडर्न फैमिली के 11 सीजन है, वो भी अभी आई थिंक लास्ट ईयर ही खत्म हुआ है, लास्ट सीजन आया था. सिमिलरली शिट्स क्रीक का भी अभी लास्ट सीजन आया है, उसके 6 सीजन है. क्या लगता है तुम लोगों को, कभी अपने इंडिया में मतलब ऐसे हिंदी शो, मतलब आज जैसे इंडिया में भी नेटफ्लिक्स शोज बनाते हैं, बट जितने भी मैंने शोज देखे ना इंडिया के जो सक्सेसफुल हुए हैं मतलब टीवी शो, दे आर मोस्टली ऐसा जैसे पॉलिटिक्स पे या यूपी के वायलेंस पे, या फिर ऐसे अजीब दास्ता टाइप्स, जैसे कहीं पे कुछ ये सेक्स रिलेटेड क्राइम्स या टैबू चीजें, ये सब चीजों पे ही हिट हुए हैं। डार्क स्टोरीज, मतलब फन स्टोरी इंडिया का कोई भी मैंने शो देखा ही नहीं जो अच्छा भी हुआ है, कल लगता है कि कभी बनेगा, या फिर ऐसा ह्यूमर ही नहीं है इंडिया में, मतलब समझ नहीं आता मुझे। आई थिंक लाइक केपेबल तो बहुत है, जैसे कि मतलब या जैसे टीवीएफ वाले हैं, जैसे दे हाँ क्रिएटेड द सीरीज इन बिटवीन, जो जिसमें उन्होंने बाहुबली पे ऐसे फन सा बनाया था एंड ऑल, तो आई थिंक टैलेंट है. Somehow, I mean, yeah, it's just not on the main screen right now, mainstream में नहीं है वो.
बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ ढंग का बनेगा तो आयुष्मान खुराना ही कुछ ढंग का बना पाएगा. अच्छा, किसी ने ये अभी रिसेंट में देखा है क्या, एस्पिरेंट वगैरह? बट वो भी जैसे लाइक वो 3 इडियट्स वाली साइड हो गया ना, मतलब फन है बट कॉलेज का या पिक्चर्स टाइप है, वैसा टाइप है. बट अच्छा है, एस्पिरेंट्स अच्छा है. जैसे उसी में देखा जाए तो मेरे को याद आ रहा है अभी एक परमानेंट रूममेट्स. मतलब हाँ, यस. मेरे को इसलिए लगता है कि मैंने फ्रेंड्स ने एकदम सही टाइम पे देखा है, और शायद प्रमोद तूने भी, क्योंकि अब भी मतलब जैसे जब मैं यहाँ पे रह रही हूँ ऑफिस, मतलब जब मैं व्हेन आई एंटर दी प्रोफेशनल लाइफ, मैं फ्लैट में रह रही हूँ, मेकिंग फ्रेंड्स इधर, तो इसलिए वो मेरे को रिलेटेबल उस टाइम पे बहुत था, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा देखने में, rather than अगर मैं स्कूल टाइम पे देखती तो. हाँ, मतलब स्कूल में ऐसा लगता है कि एस्पिरेशनल, कि हाँ मेरे को भी ऐसा करना है या ऐसी लाइफ हो सकती है. फॉर दैट मैटर लाइक जो हॉस्टल में रह रहे शायद उसको भी प्लीज करेगा. बट हाँ, काफी लोग स्कूल टाइम पे हॉस्टल में नहीं होते, काफी लोग होते हैं बट काफी लोग नहीं भी होते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे फर्क है. तो या आई थिंक ऑन दैट नोट एंड करते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स हम हमेशा आई थिंक 10 घंटा 20 घंटा बात कर सकते हैं. आई रिमेम्बर रिसेंटली, सो वी ऑल टुक अ ट्रिप टू जैसलमेर, और हम कार पे जा रहे थे, अराउंड 2-3 आवर्स ड्राइव पे या 4 आवर्स ड्राइव था रात को. आई थिंक हमने पूरे रास्ते काफी मतलब बॉलीवुड बात किया, बट फ्रेंड्स वाज लाइक 1-1.5-2 घंटा फ्रेंड्स की भी बात हुई थी. तो नहीं, आई थिंक इट स्टार्टेड ऑफ फ्रेंड्स की बात करने के लिए, बट वी सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड दैट कन्वर्सेशन अगले 2 दिन आल्सो बीच में, राइट? कि हम एकदम से बोले अरे वो वाला मोमेंट याद है, ऐसा हुआ था. तो अभी के लिए लाइक फॉर मी, अभी जैसे कि मतलब हम फ्रेंड्स की जैसे बात कर रहे हैं, बट अब रिसेंटली अभी कोई फ्रेंड्स बोलता था तो मुझे वो कार वाला टाइम ही याद आता है, जब हम चारों वो डिस्कस कर रहे थे वहां पे, वो ऐसे सुनसान से रास्ते पे, एकदम हाईवे पे, वही याद आता है मुझे. और सबसे उस जो टाइम का वो था कि सारे के सारे लोग दिन भर थक चुके हैं, और मतलब उस 5 घंटे में कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई पीछे सो रहा है, कुछ सब इन्वॉल्व है, हर कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है. मतलब वही वो फ्रेंड्स का वो है कि मतलब इतना ज्यादा पॉप कल्चर है एंड लोगों को इतना पसंद है कि यू कैन ऑलवेज टॉक अ लॉट अबाउट इट, और कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, कॉन्वर्सेशन कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए बहुत काम आता है. बढ़िया. सो या दैट्स इट गाइस. That was it from the first episode of whatever is going to be the name of this podcast. अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, but as soon as we decide कुछ ना कुछ नाम डालेंगे. But thanks guys for joining us and catch up with us next week कुछ एक और टॉपिक पे. Thanks guys. Bye.